યજ્ઞ વિશેના જ્ઞાનના આયોજન ભેગા થયા છે એ વિશે થોડીક વાત કરું તો થોડા સમય પહેલા સ્વામીજીની તબિયત તંદુરસ્ત થઈ અને તે દરમિયાન હોસ્પિટલમાં એમને એડમિટ કરવામાં આવ્યા. તો સાહેબનો પરિચય આપવાનો જરૂર રહેતો નથી, પણ છતાં પણ આ સમય દરમિયાન થોડા વધારે નજીક અને વાતચીત થઈ એનો લાભ લઈ આપણા બધા માટે આજે સુંદર યજ્ઞ વિજ્ઞાન આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડોક્ટર સાહેબની વાત કરીએ તો તેઓ ઘણા સમયથી ગુજરાત હોસ્પિટલમાં સેવા આપી રહ્યા છે. ડોક્ટર સાહેબ ડોક્ટર અને એમના પત્ની ડોક્ટર જ્યોતિ ઝા બંને ખૂબ સરસ સેવા આપી રહ્યા છે અને એ જાણીને આપને ખૂબ આનંદ થાય કે જ્યારે ઓપરેશન હોય ત્યારે દર્દીના સગાવાલાઓને ચિંતા રહેતી હોય છે અને એ ચિંતાને બદલે એ પ્રભુ ચિંતન કરે એવી સુંદર વિચારની દ્રષ્ટિથી એમણે મહાગુજરાત હોસ્પિટલમાં જ એક જગ્યાએ યજ્ઞનું આયોજન કરેલું હોય છે અને ત્યાં એ યજ્ઞ થતો હોય છે ને ભાઈ દરરોજ કરાવતા હોય છે. ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, મારે ખ્યાલથી 15 થઈ ગયા, 20 વર્ષ થઈ ગયા. એમાં હું પણ ભાગીદાર છું. મને પણ મોકો લીધેલો છે મેં કે જ્યારે મારા હસબન્ડને પણ એડમિટ કરવામાં આવે તો હું અચૂકી યજ્ઞ કરવા જતી રહી. એટલે સાહેબ ખૂબ જ ભક્તિભાવ વાળા છે અને બંને સાહેબ અને મેડમ બંને એમના ગુરુજી રામ શર્મા આચાર્ય જે ગાયત્રી પરિવારના શાંતિના પ્રણેતા છે અને તેઓના માતાશ્રી પણ એમના ખૂબ જ ભક્ત છે. બીજું વિશેષ કે સ્વામીજીની તબિયત હજુ પૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ થઈ નથી, પરંતુ આવી તબિયતને હોવા છતાં પણ એમના વિચાર, એમનું આયોજન એ આપણા માટે પ્રેરણા આપે એવું છે અને એટલે વધુ વિગત સાથે સ્વામીજી પણ આપણને આ વિશે વાત કરશે અને એમના સ્વાગત માટે સ્વામીજી કરું છું કે આપના મનસુખભાઈ છે એમના સ્વાગત છું. મારો આવો ભાગ્ય કે હું અહીંયા આવ્યો. સ્વામી વિશેષ વાત કરે માટે આપને વાત જય મહારાજ. ડોક્ટરજીના ગુરુજી અને મારા નાનપણના ગુરુજી હું શરૂઆત અને મને ગાયત્રી દીક્ષા મળી ગાયત્રી યજ્ઞમાં ત્યાં પરમ પૂજ્ય શ્રી રામ શર્મા આચાર્ય અને એ જ ડોક્ટરજીના એટલે એ આત્મિક અને હું હસતા કે ધન્ય છે મારી બીમારી જેને આપના જેવા ડોક્ટર પાસે તેને પ્રોગ્રામ ડોક્ટરજીની જે સંલગ્નતા એમની એક કાર્યનિષ્ઠતા ગુરુ પ્રત્યેની એમની સેવાની અભિવ્યક્તિ એમના કર્મમાં જ થાય.
રોજ સવાર પડે અને ભગવાનની ઘરે વર્ષોથી આ યજ્ઞ કરે અને યજ્ઞ કર્યા પછી જ એ અમદાવાદથી બંને અહીંયા મળ્યા અને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર એ જ પોતાનું સેવા ક્ષેત્ર એ બહુ મોટી વાત ધર્મયોગનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આવે અને એ કરતા રહ્યા છે અને એની મારા પિતાના જેનેલિયોગ્રાફી ને બધા માટે અંદર લઈ જવામાં આવ્યું અને પૂજ્ય ગુરુદેવનો અવાજ સંભળાતો અને ત્યારે જ મને દેખાતું કે કદાચ ડોક્ટરના ઓપરેશન્સમાં સક્સેસ રેટ 100%. કારણ કે જ્યાં ઈશ્વર પરાયણતા ત્યાં પરમાત્મા જ મને દિશા એવી મળી કે એક એવા સુયોગી ભક્તિને આપણે સમાજ સાથે લઈ જવા જોઈએ કે જ્યાં સમાજને વિજ્ઞાન પ્રતિષ્ઠા પોતાની શિક્ષા બધા માટેનો આવું બધું જ મહત્વ ધરાવતી વ્યક્તિ એ ઈશ્વર પરાયણ હોય પ્રભુ પરાયણ હોય સેવા પરાયણ હોય તો સમાજને એક ઉદાહરણ મળી શકે એ જ એક પાત્ર મારું છે મને એવું થયું કે હું આપણા બધાની વચ્ચે લઈ આવું અને એને ઘણા બધા પ્રયાસ કર્યા છે અને મારા ઘણા બધા મિત્રો બધા ઓનલાઈન થી પણ જોડાઈ રહ્યા છે જોડાતા છે અને આ પ્રોગ્રામ એ લાઈવ રહેવાનો એ પ્રોગ્રામ પણ વારંવાર બધા જોઈ શકશે આ હેતુને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે સાહેબજીને બોલાવ્યા છે ડોક્ટરજી પોતે જ યજ્ઞની પાછળનું વિજ્ઞાન પાછળનું અધ્યાત્મ એની વાતો આપણે બધા સમજી શકીએ પ્રાર્થના કરીએ वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्री वेद माता गायत्री नमः। આપનું સદભાગ્ય છે કે આપણે વચ્ચે બેન પણ આવી ગયા છે સ્વાગત કરીએ ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री वेद माता गायत्री नमः। ओम श्री संतराम महाराज्ञे नमः। पूज्य मुदितवदनानंद स्वामिने नमः। अद्य उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः नमः। स्वामीजी सूचनं कृतमस्ति यत् अनेक जनाः फेसबुक उपरि पश्यन्ति तान् अपि नमस्करोमि। यद्यपि मम संस्कृत भाषा ज्ञानम् अपि न्यूनम् अस्ति अपि स्वल्पं, किन्तु संस्कृत भाषायाः च सनातन धर्मस्य प्रचारार्थं मया एकः लघु सङ्कल्पः कृतम् अस्ति यत् यदा कदापि
आध्यात्मिक विषय किमपि वक्तुं भविष्यति तदा किञ्चित् कानिचन वाक्यानि तु संस्कृतभाषायामेव वदिष्यामि। संस्कृत अतीव सरला भाषा, स्वल्पेन प्रयासेन सर्वे जनाः होतुं शक्नुवन्ति। अद्य शुक्रवासरे शुभ सायंकाले नटपुर नगरे पुनीत आनंद धाम आश्रम क्षेत्रे महंत पूज्य श्री मुदित वदनानंद जी स्वामी वर्यस्य सान्निध्ये वयं यज्ञस्य ज्ञान विज्ञान इति विषये चर्चां कर्तुं वयम् उपस्थिताः सम्मिलिताः एकत्रिताः। भवन्तः सर्वे महानुभावाः स्वे स्वे क्षेत्रेषु निपुणाः इति ज्ञात्वा अत्यंत आनंदम् अनुभवामि। यज्ञ एक संस्कृत शब्द છે જેનો ધાતુ જે છે મૂળ શબ્દ છે એ છે યજ અને એમાં ન પ્રત્યય લાગે એટલે યજ્ઞ થાય, યજ્ઞ થાય। અને એનો इसका मतलब ये होता है कि 3 मतलब होता है उसका। एक होता है देव पूजन, जजन એટલે देव पूजन। दूसरा होता है उसका मतलब संगतिकरण, लोग भेगा थाय, यज्ञ थाय એટલે લોકો ભેગા થાય, એકબીજા જોડે વાતચીત થાય, કોઈ હવન સામગ્રી લાવે, કોઈ ઘી લાવે, કોઈ બધા ભેગા થાય, સંગતિકરણ। અને ત્રીજું એનો મતલબ હોય છે દાન। એટલે યજ્ઞ આ એક ઇટ્સ અ કોમ્બિનેશન ઓફ ઓલ ધ થ્રી, દેવ પૂજન, संगतिकरण અને दान। यज्ञ का एक और मतलब है यत ज्ञानम, जो ज्ञान है, यत ज्ञानम जे ज्ञान छे। ज्ञान शू होय? જ્યારે આપણને ખબર પડે કે આ મારું નથી એને જ્ઞાન કહેવાય। કેવું બહુ સરળ છે। આપણે યજ્ઞ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે કહીએ ને ઇદમ ગાયત્રી ઇદમ નમમ ઇદમ નમમ। આખા સંસારનું જ્ઞાન જે છે ને આ ઇદમ ન મમ 3 શબ્દોમાં it is concised in these three words। आ 3 शब्दों में पूरे संसार का ज्ञान इसके अंदर आ जाता है। इदम न मम, जब आपने को पता लग जाएगा कि इदम न मम तो आप ज्ञानी हो गए। तो यत ज्ञानम, ये ज्ञान। हमें लोग ऐसा कहते हैं कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो ऐसा कैसे, और पशुओं से कैसे भिन्न है? और भी तो पशु हैं, उससे ये मनुष्य प्राणी किस तरह से भिन्न है? तफावत शू, व्हाट इज द डिफरेंस? આપણે કોઈ સોફ્ટવેર વાળાને વાત કરીએ તો એક કે सॉफ्टवेयर अपग्रेड, तो अपने में भी एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। तो प्राणी से, पशुओं से हार्डवेयर भी थोड़ा अपडेट हुआ है और ये सॉफ्टवेयर तो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया है। यही डिफरेंस है। इसको हितोपदेश में एक बहुत ही सुंदर संस्कृत के माध्यम से कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनानि, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मैन? તેમાં એક બહુ સરસ કહ્યું છે કે આહાર નિદ્રા ભય મૈથુનાनि समानम एतत् पशुभिः कराणम्। पशु और मनुष्य के बीच में आहार, उसको भी चाहिए आहार, निद्रा उसको भी नींद आती है, भय लाकड़ी लઈને जाओ तो कूतरो भागी जाए, आपकी पासे कोई भागे तो भी આપણે भी भागे, भय। मैथुनानि એને भी परिवार હોય, આપણા भी परिवार। समानम एतत्, दिस इज सेम बिटवीन मैन एंड एनिमल। तो फर्क શું છે? व्हाट इज द डिफरेंस? तो કહે છે ધર્મો हि तेषाम् अधिको विशेष, धर्म इज द फर्क। तुलसीदास जी वो सारू कह્યું છે कि आपने उनको मनुष्य शरीर मिला है तो वो हमारी लॉटरी खुली है।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। આ મોક્ષના દ્વાર આપણે માનવ શરીર મળ્યું એટલે વી આર એટ ધ ગેટ ઓફ મોક્ષ. હવે ત્યાંથી તમે પાછા વળી જાઓ તો એનો દુર્ભાગ્ય જ કહેવાય. પાઈ ન જઈ પરલોક સવારા સો પરમ દુઃખ પાવે સિર ધુને ધુની પછતાય. કાલ અહીં કર્મ ઈશ્વરની મિથ્યા દોષ લગાય. પછી આપણે બીજાને દોષ આરોપણ કરીએ કે આના લીધે રહી ગયું આ રહ્યું. फर्स्ट थिंग वी हैव टू रियलाइज कि हमको मानव शरीर मिला है तो वो हमारा लक है, भाग, बड़े भाग का. तो आज धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो जे कह્યું હિતોપદેશમાં, તો એ ધર્મ શું છે? વોટ ઇઝ ધર્મ? તો મહાભારતમાં વેદવ્યાસજીએ ધર્મના 10 લક્ષણ બતાવ્યા છે. 10 લક્ષણો છે: ધૃતિ, ક્ષમા, દમઃ, અસ્થેયમ, શૌચમ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહમ, ધી, વિદ્યા, સત્યમ, અક્રોધ, દશકમ ધર્મ. આ 10 લક્ષણ બતાવ્યા છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અર્જુનને ગીતાનો સંદેશ આપે છે ત્યારે બી એમણે કહ્યું છે કે મારા ભક્ત બનતા પહેલા તમારે કયા ગુણ નો સમાવેશ કરવો જોઈએ. તેમાં એક કે છે અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ, અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ, મૈત્ર કરુણ એવ ચ, નિર્મમો નિરહંકાર, સમ સુખ દુઃખ શમી, સમ સુખ દુઃખ શમી. એટલે એવા કરીને એમણે 10 એ કર્યા. પછી કહે છે કે મારો જે ભક્ત હોય એમાં આ 10 ગુણ તો હોવા જોઈએ, તો જ એ ધર્મ પરાયણ કહેવાય. બીજું કે આપણા શાસ્ત્રોમાં ધર્મ એટલે શું? ધારણા ધર્મ એવું કહેવાય. ધારણા ધર્મ એટલે જે ધારણ કરવા યોગ્ય છે, જે આપણે ધારણ કરવું જોઈએ, એટલે આપણું કર્તવ્ય. આપણને મનુષ્ય શરીર તરીકે અમુક અધિકાર મળ્યા છે, પણ આપણા અમુક કર્તવ્ય બી છે which we have to follow. એ કર્તવ્ય જે છે એમાં પંચ મહાયજ્ઞ એ આપણે કર્તવ્ય કયા છે. પંચ મહાયજ્ઞ, 5 જાતના યજ્ઞ હોય. એક છે બ્રહ્મ યજ્ઞ. બ્રહ્મ યજ્ઞ એટલે જે આપણા શાસ્ત્રો છે, વેદ છે, એનું અધ્યયન કરવું, વેદ મંત્રનો જાપ કરવો. એ આપણે કહીએ છીએ ને, જન્મના જાય તે શૂદ્ર સંસ્કારાત દ્વિજ ઉચ્યતે. આપણે બ્રાહ્મણ જે એનો પર્યાયવાચી ગણીએ તો એ કહેવાય દ્વિજ, વિપ્ર અને બ્રાહ્મણ. પણ એક શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે આપણે જન્મથી બધા શૂદ્ર હોઈએ છીએ, સંસ્કારથી દ્વિજ છીએ. એટલે આપણે બ્રહ્મ યજ્ઞ એટલે આપણે સંસ્કારિત થવું અને સંસ્કારિત કરવું, આપણા નેક્સ્ટ જનરેશનને સંસ્કારિત કરવું, એ બ્રહ્મ યજ્ઞ કહેવાય. સંસ્કારિત થવું અને સંસ્કારિત કરવું. કૃષ્ણ ભગવાન બી સંસ્કારિત થયા હતા. તતશ્ચલવતી સંસ્કારો દ્વિજત્વમ પ્રાપ્ય સુવ્રતૌ ગર્ગાજી વિદુકલાચાર્ય, ગર્ગ ઋષિ દ્વારા સંસ્કારિત થયા. એટલે આપણે કૃષ્ણ ભગવાને બી આપણને સમજાવ્યું છે કે આપણે સંસ્કારિત થવું જોઈએ. એ બ્રહ્મ યજ્ઞ કહેવાય. મંત્ર, ગાયત્રી મંત્ર કે કોઈ બી મંત્ર જે છે, વેદ મંત્રનો રોજ જાપ કરવો, લોકોને સંસ્કારિત કરવું, દેટ ઇઝ બ્રહ્મ યજ્ઞ. બીજું હોય છે પિતૃયજ્ઞ. એક બ્રહ્મ યજ્ઞ થયું, બીજું હોય છે પિતૃયજ્ઞ. પિતૃયજ્ઞ એટલે આપણે જે પિતૃ પક્ષમાં તર્પણ કરીએ છીએ, पितृ पक्ष में जो हम तर्पण करते हैं वो तो करना ही चाहिए, लेकिन उसका वर्तमान में हमारे माता पिता, हमारे घर में कोई वडील हैं, उनकी सेवा करवी, એમની સેવા કરવી એ પિતૃયજ્ઞ. हमारा वडीलो घर में હોય, મોટા ભાઈ, that is પિતૃયજ્ઞ. ત્રીજું છે ભૂત यज्ञ. भूत यज्ञ में क्या होता है कि जो हमारे जैसे गौ सेवा, पशु पक्षी के लिए भी घर में की शुरुआत हो गई, आप थोड़ा पानी डाल दें, कहीं वृक्षारोपण करें,
जो हमारे चारों तरफ प्रकृति है उसकी सेवा का भूत यज्ञ। चौथा है नृ यज्ञ। नृ नर थी આવે છે નૃ જે છે નરનું धातु रूप છે नृ यज्ञ। नृ यज्ञ में क्या करना है? गरीब, असहाय, अपंग जो व्यक्ति है उनकी सेवा, उसको कहते हैं नृ यज्ञ। और पांचवा जो है जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं वो देव यज्ञ। देव यज्ञ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं वही देवता है, प्रत्यक्ष देवता। पर्यावरण, वायु देव, जल देव, वृक्ष देव, धरती माता, अन्न देव, इसका संवर्धन करना, इसका पोषण करना, ये हमारे होमात्मक यज्ञ से होता है, इसलिए उसको देव यज्ञ कहते हैं। यज्ञ अपने किसी होटल में रहने जाते हैं तो हमको भाड़ा देना पड़ता है। अगर भाड़ा ना दें तो आपको बोलेगा कि प्लीज लीव। अपने भी यहाँ पे इस जगह पृथ्वी पर रहने आए, हमको फ्री में ऑक्सीजन, पानी, अनाज, धरती सब मिला है, तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ टैक्सेशन, जिसको सरकार टैक्स बोलती है, उसको हमारे ऋषियों ने बलि वैश्य कहा है। बलि वैश्य, बलि का मतलब वो पशु बलि या नर बलि वो नहीं, बलि का मतलब होता है टैक्स। हमारे ऊपर जो कर्जा है उसको आप चुकाओ, कर्जा चुकाओ। गाय का अगर आप दूध लेते हैं, गाय को दूधते हैं, तो आपकी जवाबदारी है कि गाय को चारा भी दें। आप चारा नहीं देंगे, खाली दूध लेते रहेंगे तो गाय दूध देना बंद कर देगी। आप इस पर्यावरण से हवा, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, जल लेते हैं, अन्न लेते हैं, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप यू रिप्लेनिश। देखिए सुबह से मतलब 24 घंटे हम इस पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। 24 आवर्स, 24/7, 365, सांसों के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, पसीनों के द्वारा, गंदगी के द्वारा। तो हमारी जवाबदारी बनती है कि हम उसको ठीक करें। कौन ठीक करेगा? When you are utilizing the facilities, so it is our duty to rectify. जो इम्प्योरिटी आई है उसको ठीक करना हमारी जवाबदारी है। वो इस यज्ञ के द्वारा होता है। कार आप चलाते हैं तो कार में पेट्रोल डालना भी हमारी जवाबदारी है। पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कार चलेगी नहीं चलेगी। मैं यूके में था तो मेरा पहला दिन था 1996 की बात। तो आईसीयू में पहला दिन था तो मुझे वहाँ पे व्हाइट कोट पहनते हैं डॉक्टर्स, तो वो मेरे साइज का कोट था नहीं। तो हमारे बॉस ने कहा कि ये कोट है थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको आज पहन लो, कल से आपका आ जाएगा आपके टाइम का। तो ये वो कोट था बहुत लंबा, किसी ब्लैक डॉक्टर का कोट था, बहुत ऊंचा, 6.5 फीट का डॉक्टर था। तो उसको संभालना थोड़ा गहरा था। तो मैं जैसे आईसीयू में एंटर हुआ तो अनफॉर्चुनेटली वो कोट की वजह से वो थोड़ा बड़ा था, तो उसकी वजह से एक बीटाडिन की बोतल, बीटाडिन मतलब एक सोल्यूशन आता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, उसको धक्का लग गया उस कोट का कपड़े से, तो वो सोल्यूशन नीचे डूल गया फर्श पे। तो हमारे इंडिया में, अपने देश में जैसे डॉक्टरों की आदत होती है, बॉस होता है ऑफिसर, छगन साफ कर दे जगह। मैं वैसे ही छगन तो नहीं बोला, एक पैट्रिक करके वेस्ट इंडियन स्वीपर था, उसके पास मैं गया, मैं बोला मिस्टर पैट्रिक, यस, देयर इज स्पिल्ड बीटाडिन हैज बीन स्पिल्ड एक्सीडेंटली, विल यू प्लीज क्लीन इट। तो उसने मेरी तरफ देखा, हु स्पिल्ड इट, वो वेस्ट इंडियन स्टाइल में। मैंने कहा आई स्पिल्ड इट। You spilled it, you clean it. તમે કર્યું છે તમારે સાફ કરવું પડશે,
आई बिग लेसन है कि अगर हमने गंदगी की है तो जवाबदारी हमारी बनती है। बस यज्ञ वही सिखाता है। आप जितना पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, ये आपकी जवाबदारी है कि आप उसको ठीक करें। तो जब आप उसको ठीक करेंगे तभी आपका वो जो ऋण है वो आप चुकता कर सकेंगे। आप देखते होंगे कि मैं छोटा था तब मैं बिहार से आता हूँ। तो बिहार में हमारे गांव में मेरी दादी रहती थी। तो समर वेकेशन में हम लोग दादी के पास जाते थे। तो मेरी दादी को एक दिन मैंने कहा कि दादी बा कहते थे, मतलब ये जल्दी खाना बनाओ। तो उसने कहा कि रुक रुक रुक। खाना चढ़ा हुआ था चूल्हे पे, तब चूल्हा था वो लकड़ी वाला चूल्हा। तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी दे दे फटाफट। बोला नहीं नहीं 2 मिनट रुक जाओ। तो इस एनएचओ करीब मैंने उसने ऐसा किया कि वो रोटी के टुकड़े जो है घी में लगा के चूल्हे में डाला, 5 चूल्हे में डाला। तब मुझे पता नहीं लगा कि वो क्यों डाल रही है। बाद में जब मैंने परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा तो वही होता है बलि वैश्य। बलि वैश्य की आहुति, आप कुछ दें उसके पहले आप अग्नि को समर्पित करें। तो उन्होंने रोटी, गुड़ और घी उसको मिला के 5 आहुतियां दी। आप देखते हो कि जब भी किसी की शव यात्रा निकलती है, पुराने जमाने में सभी के घर अखंड अग्नि हुआ करती थी। अखंड अग्नि, उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि जब भी किसी की शव यात्रा निकलती है तो वो जो जहाँ पे श्मशान घाट होता है वो तो दूर होता है, लेकिन घर से लोग वो जलता हुआ धुआं लेके जाते हैं, धोने लेके जाते हैं। तो वो तो वहां पे भी श्मशान घाट पे भी बना सकते हैं ना, तो घर से क्यों लेके जाते हैं? वो परंपरा तब से चली आ रही है जब से हमारे घर में अखंड अग्नि हुआ करती थी। प्रत्येक के घर में, प्रत्येक के घर में अखंड अग्नि हुआ करती थी। और ये परंपरा, यज्ञ की परंपरा प्रत्येक घर में होती थी। और अखंड अग्नि, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसके स्वजन परिजन श्मशान तक जाते हैं, तो अखंड अग्नि भी श्मशान तक जाती थी, क्योंकि वो परिजन है उसका, स्वजन है उसका। अखंड अग्नि को जीवंत मानते थे। तो कहने का मतलब ये कि हम उसको भूल गए। और ये यज्ञ ऐसी चीज है जो नॉर्मली अपने इंग्लिश में कहते हैं ना, गिव एंड टेक। पर्यावरण को गिव एंड यू टेक फ्रॉम द पर्यावरण। पर मैं उसको और सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ, गिव एंड गेट। आप देंगे तो आपको मिलेगा ही, भले आप ले नहीं, आपको मिल जाएगा। तो ये हमको रिलेशन पर्यावरण के साथ रखना चाहिए, और उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए यह एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। यज्ञ जो है उसमें एक विज्ञान भी है। अध्यात्म और विज्ञान का एक जोरदार मिश्रण है यज्ञ। उसमें अध्यात्म भी है पूरा, और उसमें विज्ञान भी है। तो आप कहेंगे विज्ञान क्या है? तो इसमें विज्ञान है, 3 वस्तुओं का विज्ञान है। साइंस ऑफ फायर, अग्नि विज्ञान। साइंस ऑफ साउंड, मंत्र विज्ञान। और साइंस ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटी विज्ञान। ये 3 विज्ञान का सम्मिश्रण है यज्ञ। अग्नि ऐसी चीज है, अग्नि का नाम ही अग्नि इसलिए पड़ा है क्योंकि वो प्रथम देवता है, अग्रिम देवता। अग्नि अग्रिम देवता, फर्स्ट। आप देवताओं के नाम लीजिए, उसमें सबसे पहला नाम अग्नि का है। और अग्नि ऐसी चीज है और यज्ञ ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारे ऋषियों ने पूरा का पूरा ऋग्वेद जो ग्रंथ है वो अग्नि और यज्ञ पे ही है। पूरा का पूरा ऋग्वेद, अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम तारम धातु, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र। पूरा का पूरा ऋग्वेद अग्नि पे है। और अग्नि, आप आज के वैज्ञानिक को पूछें कि अग्नि क्या चीज है, नॉर्मली मैटर तो वो लोग सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा ऐसा बोलते हैं, तरल पदार्थ ठोस पदार्थ गैसीय। अग्नि का क्लासिफिकेशन करने जाए तो देयर इज नो क्लासिफिकेशन। लोग कहते हैं
We don't know whether it is plasma or gas. Nobody has classified Agni. Agni it's an enigma. Agni is an enigma for the scientific community. तो और दूसरी खास बात यह है कि अग्नि ऐसी चीज है, जैसे मैं मनुष्य और प्राणी की, पशुओं की डिफरेंस की बात कर रहा था। अग्नि एक ऐसी चीज है जिसका केवल मनुष्य उपयोग कर सकता, कोई प्राणी इसका उपयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए कोई कारण है जिस वजह से ईश्वर ने मनुष्य के को वो शक्ति दी है कि वो अग्नि का उपयोग कर सके। इसलिए गीता के 3 अध्याय में जब यज्ञ की बात करते हैं तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स यज्ञ प्रजा सृष्टा, यज्ञ का जो सर्जन किया भगवान ने, पूर्ववाच प्रजापति ने जब सृष्टि की रचना की तो सह यज्ञ के साथ प्रजा सृष्टि, हमारी जो उत्पत्ति हुई वो यज्ञ के साथ हुई। सह यज्ञ प्रजा सृष्टि पूर्ववाच प्रजापति ने क्या कहा, अनेन प्रसविष्यतम वो इष्टिष्ट काम दो, आप यज्ञ करो और यज्ञ से आप फल पाओ, बेनिफिट लो। यज्ञ में क्या करना है, देवताओं का यजन करना है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यते। आप देवताओं का पूजन करिए और देवता और आप मनुष्य दोनों मिलके एक दूसरे को हेल्प कीजिए। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यते, आप श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। तो यज्ञ जो है, और भगवान श्री कृष्ण आगे ये कहते हैं कि यज्ञात भवति पर्जन्य, अन्नात भवति पूतानि, पर्जन्यात अन्न संभव, और यज्ञात भवति पर्जन्य, ये जो अन्न की उत्पत्ति होती है वो पर्जन्य से होती है। पर्जन्य नहीं प्राणवान वर्षा, साधारण वर्षा नहीं। जब आपने देखा सुना होगा कि पौराणिक कथा में जब भी कोई, या सत्यनारायण भगवान की कथा में जब भी कोई अनावृष्टि या सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो लोग यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने के बाद फिर बरसात होती है। तो यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्य मतलब प्राणवान वर्षा, यज्ञ के द्वारा संभव है। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, आज तो रामनवमी का दिन है, सुंदर दिन है, भगवान राम ने भी यज्ञ की महिमा का अपना खुद का आविर्भाव यज्ञ के द्वारा करवाया। यज्ञ में जो खीर जो थी, होम में से होम करने के बाद जो खीर बनी, उससे उन्होंने खुद का मतलब यज्ञ की महिमा का कितना उन्होंने तो हम लोगों को बताया, यज्ञ से उत्पत्ति मेरी। तो फिर अपने आगे उन्होंने, जब रावण का वध हुआ उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसलिए करवाया क्योंकि जब राक्षसी वृत्ति का भौतिक रूप में जब खात्मा हो गया, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से जो वातावरण में राक्षसी वृत्ति थी उसका खात्मा करना जरूरी था। क्योंकि रावण का शरीर तो खत्म हो गया, कुंभकर्ण का, राक्षसों का शरीर खत्म हो गया, लेकिन जो वैचारिक प्रदूषण उन लोगों की वजह से हुआ था सूक्ष्म जगत में, उसको खत्म करना भी जरूरी था। तो रावण वध के जैसा ही काम उस अश्वमेध यज्ञों ने किया। भौतिक राक्षसों का तो वध हो गया, लेकिन जो सूक्ष्म राक्षस थे, नेगेटिव जो एनर्जी थी सूक्ष्म वातावरण में, उसको खत्म करना जरूरी था, इसलिए अश्वमेध करें। वैसे ही राजसूय यज्ञ किया कृष्ण भगवान ने। जब महाभारत की समाप्ति हुई उसके बाद युधिष्ठिर से उन्होंने अनेकों राजसूय यज्ञ कराए, जिससे जो सूक्ष्म जगत में जो विकृति है उसका अंत। तो यज्ञ की महिमा, और हमारे शास्त्रों में प्रत्येक संस्कार के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। 16 संस्कार जो कहते हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार, सभी संस्कारों के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। हमारे ऋषि जानते थे कि व्यक्ति जो है वो भूल जाता है, मनुष्य जो है वो भुलक्कड़, आज उसको यज्ञ के बारे में समझाएंगे वो भूल जाएगा, तो कम से कम संस्कारों को उसके साथ जोड़ दो, ताकि कम से कम अपनी जिंदगी में
वो जो 16 संस्कार है, कम से कम 16 यज्ञ तो करे, वैसे आजू बाजू लोगों का यज्ञ तो यज्ञ चलता रहे। वैसे ही होली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर भी यज्ञ का विधान है, ताकि कम्युनिटी वैक्सीनेशन होता है। तब वैक्सीन तो होते नहीं थे, जो अभी ओरल पोलियो वैक्सीन वगैरह जो आता है, डिफ्थीरिया और उसका वैक्सीन, तब वो होते नहीं थे। तो जब ऋतु संधि होती थी, ऋतु संधि यानी जब शीत खत्म हुआ और गर्मी चालू हुई, उस वक्त लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। जब बरसात खत्म हुई और जाड़ा शुरू हुआ, तो वो ऋतु संधि बोलते हैं, दो ऋतुओं की संधि। ऋतु संधि में बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है और लोगों के बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो हमारे ऋषियों ने उस वक्त यज्ञ का प्रावधान रखा। होली ऋतु संधि के समय आती है, नवरात्रि ऋतु संधि के समय आती है, दिवाली में ऋतु संधि के समय आती है, ताकि लोगों का वैक्सीनेशन होता रहे। वो जो हमने अंग्रेजी वैक्सीनेशन दिया है, तब वो कम्युनिटी वैक्सीनेशन का एक तरीका होगा। और जितने भी संस्कार होते हैं उसमें आप देखेंगे कि लगभग 12-13 संस्कार बचपन में ही पूरे हो जाते हैं। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था तक आते आते संस्कार पूरे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी भी कम होती है। उसको उसका इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए ये संस्कार उस वक्त रखे थे। उसका सोचने की वृत्ति भी सुधरे, यज्ञ से सोचने की वृत्ति भी सुधरे, और उसके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़े। तो यज्ञ का हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझकर इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम अपनी जब कोई मशीन हम उपयोग करते हैं, जैसे आप एयर कंडीशनर ही देखिए, एयर कंडीशनर है, उसको आप वो बोलता कंपनी वाला कि इसको एएमसी हुआ सर्विस कराना पड़ेगा, सर्विसिंग की जरूरत होती है। कोई भी मशीनरी, उसको कार होती है, उसको भी 10,000 की 15,000 की एक सर्विसिंग की जरूरत। ये यज्ञ भी इस पर्यावरण की सर्विसिंग है। यज्ञ जो है पर्यावरण की सर्विसिंग। यज्ञ तो अभी तो वैज्ञानिक लोग इसको पहले स्मोक कहते थे, अब इसको मेडिसिनल स्मोक कहते हैं। मेडिसिनल स्मोक, उनका भी टर्मिनोलॉजी अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू मेडिसिन, और मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ नेबुला, नेबुलाइजेशन। जैसे हम अस्थमा किसी को होता है तो उसको नेबुलाइजेशन देते हैं, नास 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 देते हैं, वो छोटा छोटा उसका एयर ड्रॉपलेट्स हो जाता है, वो नास से जाता है तो पूरी बॉडी में जाता है। तो ये जो भी हम हर्ब्स डालते हैं यज्ञ अग्निकुंड में, तो वो इट गेट्स स्टीम वोलेटिलाइज्ड, स्टीम वोलेटिलाइजेशन होके उसका पूरी बॉडी के अंदर, हमारे नासिका के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर फैलता है, और वो मेडिकेटेड। इसको ऐसा आप समझ सकते हैं कि मैं तो अंग्रेज एलोपैथिक डॉक्टर, तो उसको आपको सिरिंज और उसकी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप किसी पेशेंट को आपको इंजेक्शन देना चाहिए, आप देना है तो आप पहले सिरिंज लेंगे, उसके ऊपर नीडल लगाएंगे, दवा लेंगे और फिर दवा देंगे। तो ये अग्निकुंड जो है ये, और उसके अंदर जो चलती हुई समिधा है, वही उसको आप सिरिंज समझ लीजिए, सिरिंज, ठीक है। और वो जो नीडल है वो आपके मंत्र है, जो आपको मंत्र बोलते हैं वो सुई है, और जो आपने अंदर हर्ब्स डाले, जो जड़ी बूटी आपने बोमी, वही मेडिसिन है। तो आप जब यज्ञ करते हैं तो आप यू आर इंजेक्टिंग दैट मेडिसिन, और वो मंत्र जो है वो पूरे पर्यावरण में वो नीडल के तरीके से उस मेडिसिन को इंजेक्ट करता है। तो एक सिंप्लीफाइड बोलने का तरीका है ये कहने का। यज्ञ के माध्यम से हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया। ये इतनी बड़ी किताब है, उन्होंने बहुत पहले लिखी थी। और एक दूसरी किताब है ऐसी, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, वो मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन
वो भी ऐसी बड़ी किताब है के अंदर उन्होंने यज्ञ के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि यज्ञ से आप कैसे कैसे रोगों को ठीक कर लेते हैं। हमको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया जाता है एमबीबीएस में, माइक्रोबायोलॉजी। उसमें ये बताया जाता है कि यज्ञ जो बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन हुआ, वो किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है या वायरस की वजह से होता है या फंगस की वजह से होता है। तो वो आजकल के वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि ये हमने शोध किया है कि बैक्टीरिया की वजह से। एक रॉबर्ट कॉक करके एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने